Welcome to Shiksha Zone. Today we'll discuss the topic called carbon and its compounds. Carbon. Carbon is chemically unique. यूनिकनेस ऑफ कार्बन कार्बन जो है केमिकली यूनिक है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। आज ये चैप्टर में हम कार्बन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, यूनिकनेस ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स एंड ऑल द अदर कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट। अगर कार्बन की बात करें तो यू कैन ऑब्जर्व सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं अगर आप उसको बर्न करोगे अल्टीमेटली दे विल प्रोड्यूस अ ब्लैक कलर ऐश विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट। सो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो ज्यादातर हर एक कंपाउंड का एक कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल या एलिमेंट हो सकता है। इन दिस चैप्टर of 10th standard NCERT will discuss the carbon and its importance or uniqueness of carbon। कार्बन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड, क्लोथिंग, मशीनरी, शेल्टर, हर जगह हर मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन की ये जो यूनिकनेस है या कार्बन की ये जो प्रेजेंस है इन ऑल द कंपाउंड इट इज ड्यू टू इट्स टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। सो फर्स्ट हम लोग कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे which is called a tetravalency of carbon and a catenation। टेट्रावेलेंसी डिस्कस करने से हम पहले डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन एटम। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन previous chapters we have studied about two different type of bonding, ionic which is also known as electrovalent bond and the covalent bond। Ionic bond is produced by gaining and losing of electron। Those elements which are having large difference in their electronegativities they tends to gain or lose electron and producing cations and anions। By producing these cations and anions due to the electrostatic force of attraction between cation and anion they produces ionic bond। Why elements combines together? We know that हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है which is called octet configuration। To attain the octet configuration, generally they tends to gain or lose electron। By gaining of electron, they will convert it into the anions। By losing of electron, they will convert it into the cation। So cation और anion जो है वो static attraction की वजह से close आते हैं and the bond between them or force of attraction between them is known as a ionic bond। The other way around, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं कर सकते। Then what they will do, they will share their valence electrons। Now again valence electrons, those electrons which are present in the outermost orbit they are known as valence electron। They will share this valence electron and they complete their octet। This type of sharing of electron they come closer to each other and the attraction between them is called a covalent bonding। So generally carbon produces covalent bond। Bonding in carbon it's a covalent bonding। कार्बन के जो एलिमेंट्स है उसमें कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन जनरली आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। विल डिस्कस व्हाई कार्बन कैन नॉट प्रोड्यूस आयोनिक बॉन्ड। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे कार्बन के जो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पजेस करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि कार्बन के अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक in previous chapter we have studied the properties of ionic compounds। We saw that the ionic compounds have high melting and boiling point। Those compounds which are ionic in nature they are having high melting and boiling point। It's one of the property that ionic compound is having। They can conduct electricity in their solution and in their molten state also। We also studied how the nature of bonding in ionic compound explain these properties। Let us study now the properties of some carbonic compounds। कुछ carbonic compound की properties discuss कर लेते हैं जैसे कि एसिडिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, ये कुछ मीथेन है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो। They are having low melting and boiling point। What it indicates that carbon containing compounds generally possesses non-ionic bond। Non-ionic bond that means it has a covalent bond in it। क्यों कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? What is the reason behind that carbon cannot produces ionic bond? What is the reason that carbon cannot lose or gain 4 electrons which are called valence electrons present in its outermost orbit?
कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मींस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ 4 बॉन्डिंग। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन जो है वो दूसरे 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन and it produces a covalent bond. Why it cannot form the ionic bond? We have two important reasons that a carbon cannot gain or lose the 4 electrons present in their orbits. Number one, if it could gain 4 electrons, then it forms C4 minus ion. We know that those elements gain 4 electrons. They can have a charge 4 minus on them. ये जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. But it would be difficult for the nucleus with a 6 proton to hold on 10 electrons. See, कार्बन के एटम की बात करूं तो कार्बन के एटम में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 electrons and its second orbit contains 4 electrons, correct? Now for the completion of octet, carbon need 4 more electrons. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सपोज कार्बन वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. नाउ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मेक्स this orbit having 8 electrons. How many? 8. Now this 8 electrons should be held together by 6 protons. प्रोटॉन तो सेम ही है न्यूक्लियस के अंदर. ये 6 प्रोटॉन ये 8 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड नहीं कर पाएंगे. दैट इज द रीजन कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा. सो नंबर 1, व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 माइनस आयन. अगर -4 आयन अटेन करनी है कार्बन को, दैट मींस इट शुड हैव गेन 4 इलेक्ट्रॉन. लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी बैलेंस्ड बाय 6 प्रोटॉन, व्हिच इज इम्पॉसिबल. ये 6 प्रोटॉन ये 8 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई C4 माइनस आयन इज नॉट पॉसिबल. एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन हेल्ड नहीं किए जा सकते. देन व्हाट इज द वे अदर अराउंड. भाई दूसरा काम क्या कर सकता है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, देन इट हैज अनदर ऑप्शन. वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. देन आयोनाइजेशन कहते हैं इसको. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन. अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज कर देता है, इट कैन अक्वायर C4+ आयन, which is called cation. But this will require large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind the carbocation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons. Nucleus में 6 प्रोटॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, we need large amount of energy to remove these 4 electrons, और ये practically impossible है. 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, which is known as ionization enthalpy, we need large amount of ionization enthalpy to remove this 4 electron, and that's why it is also impossible to for the carbon to have C+4 ion catenation or cation formation. So कार्बन जो है वो ना तो C4- anion बना सकता है, ना तो C4+ ion cation बना सकता है. That means it cannot produce +4 cationic charge और -4 anionic charge. और इसीलिए कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ना कि वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा. क्लियर? सो कार्बन कैन प्रोड्यूस कोवेलेंट बॉन्ड. सी द कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन C+4 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, C4- का फॉर्मेशन नहीं कर सकता. देन व्हाट्स द वे अराउंड? कार्बन एक और काम कर सकता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन है उसको वो शेयर कर लेगा. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And by sharing of electrons with other element, carbon can produce 4 covalent bond. See, अगर मैं कहूं कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होता है इसको कहते हैं K shell. The second shell is called L shell. So L shell of carbon possesses 4 electrons in its outermost orbit. These 4 electrons can share with the other 4 element like hydrogen. Suppose hydrogen अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये जो क्रॉस मार्क है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स है, और जो डॉट शेव किया है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कार्बन जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कंबाइन होके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है. ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसको मीथेन कहते हैं. CH4 मीथेन. CH4 इट्स अ मीथेन. सो मीथेन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर क्या फॉर्म हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो इट रिप्रेजेंट्स tetravalency of carbon. Carbon is tetravalent in nature. Carbon can produce 4 covalent bond
कैन नॉट प्रोड्यूस आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैशन और एनायन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कार्बन के केस में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. सो फॉर द ऑप्शन, कार्बन जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विद द अदर एलिमेंट्स, और कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. कार्बन की जो यूनिकनेस है, उसमें पहली यूनिकनेस है इट्स टेट्रावैलेंसी. ये था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. स्टे ट्यून्ड.